So hello student, we start second part of first chapter transportation system of class 8. So what is transportation system in plant? So in plants need to transport water from the roots to the leaves. Now plants do so with help of transportation tissue. So this tissue which used to transport water and dissolve mineral is known as xylem. And phloem tissue is responsible for the transport of food prepared by leaves to various parts of the plants. So xylem tissue consists of two types of cells, vessels and tracheids. So these are xylem vessels and this is tracheids. So vessels and tracheids are elongated cell which form a continuous column from water conduction. Now as water have moved from the roots up to the leaves. Next is phloem. What is phloem? So phloem tissue is responsible for the transport of food prepared by leaves to various parts of the plants. So food is stored in the plant in the form of sucrose. So plant transfer sucrose all over their body. Plants में जो food store होता है वो किस form में store होगा? Sucrose के form में store होगा. And plants transfer sucrose all over their plant body. So this tissue is responsible for the transportation of food is phloem tissue. So phloem tissue have two types of cells. ये क्या है? ये sieve cells है और ये हमारा कंपेनियन सेल्स है. तो ये क्या होंगे? दीज सेल्स ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स. ये आपकी कंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स ये क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे अमीनो एसिड्स को एंड अदर सब्सटेंस को इन द स्टोरेज पार्ट ऑफ द रूट. दे ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द फ्रूट सीड and other growing organs. For example, sucrose is transported by the phloem tissue of the growing buds as they need to grow. Next is transpiration. What is transpiration? Transpiration is the loss of water in the form of water vapor from the internal tissue through the aerial parts of the plant, especially leaf. Significance क्या होता है transpirations का? Transpiration help in cooling a plant. जो transpiration है वो plants को cool करने में help करता है when there is loss of water from plants aerial parts. जब plants में water का loss होगा तो इट लोवर्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट. जो प्लांट्स बॉडी की टेम्परेचर होगी वो लो हो जाएगी. फिर दस प्लांट इज एबल टू कूल इटसेल्फ व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड. नेक्स्ट टॉपिक प्लांट्स न्यूट्रिएंट. व्हाट इज प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स? क्या होता है? तो लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे सप्लाई होगा प्लांट्स को? तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड बाय एयर वाटर एंड सॉइल. So in plant 17 chemical elements are known to be important for growth and survival. और इस important chemical elements को हम लोग essential elements भी बोलते हैं. And तो these elements can be further divided into non-minerals element and mineral elements. Non-mineral elements क्या होते हैं? तो out of 17 nutrients elements required by plant, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन सप्लाइड बाय एयर. जो कार्बन एंड ऑक्सीजन होंगे वो कैसे सप्लाई होंगे? एयर से. और हाइड्रोजन इज सप्लाइड बाय वाटर. ये जो 3 एलिमेंट्स आपके कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन्हीं 3 एलिमेंट्स को हम नॉन मिनरल्स एलिमेंट बोलते हैं. और दीज एलिमेंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स. और ये एलिमेंट्स जो है प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे टू मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? मिनरल एलिमेंट्स जो होंगे वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होंगे दैट कम फ्रॉम द सॉइल. और ये दे आर एब्जॉर्ब थ्रू प्लांट रूट्स along with the water and ये required होगा for the proper growth and developments of plants. फिर नेक्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. क्या होंगे? आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. दीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड these micronutrients are required in large amount.
फिर नेक्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल एंड क्लोरीन, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फंक्शंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फंक्शंस क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जैसे नाइट्रोजन, इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल। नाइट्रोजन क्या है, एसेंशियल्स है प्रोटीन और क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए, और ये हेल्प करेगा इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फॉस्फोरस essential for photosynthesis and proper plant maturation. Potassium help in building up protein, photosynthesis and fruit quality, और help in, और किसमें पोटेशियम किसमें हेल्प करेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, एंड मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल and hence essential for photosynthesis. And functions of micronutrients का functions क्या है, iron essential for chlorophyll formation, borons help in the production of carbohydrate, manganese important components of enzyme, and zinc regulate functions of many enzyme. Deficiency symptoms in plants क्या होते हैं, जैसे plants कुछ common deficiency symptoms होते हैं plants में, जैसे stunt growth. stunt growth means होता है plants का proper growth ना हो पाना। जब प्लांट्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस की डिफिशिएंसी हो जाती है, मींस नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस में प्लांट्स की कमी हो जाएगी, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होगा, द डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। जब नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम की प्लांट्स में कमी हो जाएगी, डिफिशिएंसी हो जाएगी, तो जो प्लांट्स की लीव्स होंगी वो येलो कलर की हो जाएंगी, क्लोरोफिल कंटेंट्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इज नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू। पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की जब प्लांट्स में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट्स की जो टिश्यू होंगे वो डेथ कर जाएंगे। फिर नेक्स्ट इज लीफ मॉटलिंग। लीफ मॉटलिंग क्या होगा, इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ जिंक। जब जिंक की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो जो लीव्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे साइज में, बहुत ही अच्छे से जो लीफ होगी वो एक्सपैंड नहीं हो पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, एंड पार्शियल क्लोरोसिस, और वो क्लोरोसिस हो जाएगी, मतलब कि स्पॉट पड़ जाएंगे येलो येलो कलर्स के, इस टाइप के।